Most people think interviews are about answers. They are wrong. An interview is not an exam. It's not a viva, and it's definitely not a place where marks, medals, or memorized lines saves you. An interview is a judgment room where decisions are made long before you shake hands, and sometimes even before you enter the building. Because here's the truth nobody tells students: the interview begins the moment you apply. Your resume talks before you do. Your posture speaks before your words. Your mindset is exposed before your skills. We teach students how to face interview, but never how to understand them. We train them to answer, "Tell me something about yourself," but not to realize that this one line can either open the door or shut it permanently. Today, interviews are changing faster than degrees. AI screens your resume, panel tests your thinking and not your memory. And confidence without clarity is spotted in seconds. Yet, thousands walks into interview rooms believing that knowledge alone is not enough. It isn't, because interview don't just evaluate what you know. They evaluate how you think under pressure, how honestly you see yourself, how balanced you are and between ambition and reality, and whether you're worth trusting beyond your CV. This podcast is not about cracking interviews, it's about not getting exposed in them. From campus placements to boardrooms, from freshers to MBA, from the first impression to the final handshake. Today, we break down the interview from entry to exit, exactly the way panel sees you. No fake motivation, no memorized templates, and no HR myths. Just the uncomfortable truth. Welcome to Mind Your Business. Let's talk interview the way they actually works. सर, इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू अपने समय के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन अगर आप मोटे मोटे तौर पे समझें तो हिंदी में इसको साक्षात्कार कहते हैं. एन इंटरव्यू इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर टू स्ट्रेंजर्स आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वन साइड इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अदर साइड and finding the answer that why and how this person can become the part of my organization. तो सरल भाषा में इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर पैनल ये जानने की कोशिश करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपका वैल्यू सिस्टम, आपकी एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग और उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, क्या वो मूलतः मेरे ऑर्गेनाइजेशन की फ़िलॉसफी से, मिशन और विजन से मैच होती है कि नहीं. That's what interview is. But why interview? देखिए, ऑन पेपर आप बहुत शानदार हो सकते हैं. कई बार क्रिकेट में एक बात कही जाती है कि जो टीम ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग दिख रही है, कई बार वो फील्ड में इतनी स्ट्रांग नहीं होती. तो कई बार ऐसा होता है कि रेज्यूमे बड़ा पावरफुल दिखता है पर पर्सनैलिटी बिल्कुल विपरीत होती है. कई बार रेज्यूमे बहुत हल्का होता है और पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल होती है. तो एक ही तरीका है जिसके थ्रू मैं आपको समझ सकता हूँ, वो है बातचीत का तरीका. अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इंटरव्यू को बड़ा ही खतरनाक तरीके से देखा जाता है. इट इज़ बीइंग कंसीडर्ड एज अ वन वे प्रोसेस, बट इट इज़ नॉट. इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन. तो बेसिकली एक कमरे में 3 पैनल और एक स्टूडेंट बैठकर ये बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट कैसा है. तो उसको लेके बहुत तनाव नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मेक्स यू मोर क्यूरियस and makes you more nervous. So everybody get nervous moment you enter the interview room, but it's a beautiful process to know an individual and a personality. Okay. And does institutions make the student prepare for an interview? देखिए, ये एक आयरनी है. हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो अमूमन पहला इंटरव्यू जीवन में आदमी ग्रेजुएशन के बाद देता है. किसी भी तरह के ग्रेजुएशन के बाद पहला इंटरव्यू, जिसको हम जॉब इंटरव्यू कहते हैं, अंदाज़न लेता हूँ 24 साल की उम्र में देता होगा. कई बच्चे अपना पहला इंटरव्यू पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, तो मान लीजिए 26 की उम्र में देते होंगे. तो आप हायर साइड लेके चलिए कैलकुलेशन से, 26 साल की उम्र तक आपने जीवन में एक भी इंटरव्यू नहीं दिया. पूरी शिक्षा प्रणाली, पूरा एकेडमिक जर्नी सिर्फ एक ही पर्पस के लिए होती है, वो है एम्प्लॉयमेंट.
आपकी शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट के बीच में एक चीज़ मौजूद होती है जिसको बोलते हैं इंटरव्यू। ओके, तो ये हमको पहले से पता है कि एक दिन बच्चा ये इंटरव्यू देगा। देगा। लेकिन पूरे एकेडमिक करियर में 1 से लेके 12वीं तक और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इस पूरी जर्नी में उसे कोई ठीक से नहीं बताता कि व्हाट एग्जैक्टली इंटरव्यू इज। वी हैव कन्वर्टेड द एंटायर इंटरव्यू प्रोसेस इनटू क्वेश्चन आंसर। तो ये बात किसी ने किसी बच्चे को कभी नहीं सिखाई कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। भाई एक दिन तो बैठना है, तो धीमे धीमे ही सही अपना आकलन करते जाइए और थोड़ा थोड़ा तैयारी करते जाइए कि एक दिन में आपसे ये सवाल इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली एट द एंड थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया जाता है जो आता है और बताता है हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू। तो दैट्स आयरनी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम ये पॉडकास्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो द पर्पज ऑफ दिस पॉडकास्ट इज टू मेक द स्टूडेंट रेडी फॉर सच काइंड ऑफ सिचुएशन और अ स्टेज विच वी कॉल्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू। आर देयर एनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू? बहुत तरह के होते हैं, लेकिन राउंड 1, राउंड 2, डिफरेंट राउंड्स होते हैं। तो कई राउंड्स ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं अगर आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पर मोटे मोटे तौर पे आप डिवाइड कर सकते हो टेक इंटरव्यू एंड HR इंटरव्यू। ओके, दैट टू हैपन्स इन द टेक्निकल प्रोफाइल। अदरवाइज एक जनरिक इंटरव्यू होता है और एक HR इंटरव्यू होता है। तो इसी तरह के मुख्यतः कुछ 2-3 तरह के इंटरव्यू होते हैं। हाउ इज इट नेसेसरी दैट एनी इंटरव्यू शुड स्टार्ट विद दैट वन क्वेश्चन? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Before I answer this question, it is very important to understand why they ask this question. ओके, So what happens when a student prepare for the interview? जब भी बच्चा किसी इंटरव्यू की तैयारी करता है तो उसको पहले बताया जाता है कि उसकी जो पहला सवाल पूछा जाएगा वो होगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। करेक्ट? आपको मैं अंदाजे से बताता हूँ, पहला जो 1-1.5 मिनट का समय होता है उसी के अंदर पैनलिस्ट तय कर लेता है कि वेदर दे गोइंग टू टेक दिस स्टूडेंट और नॉट। और उसमें ये सवाल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, और ये सवाल पहले ही क्यों पूछा जाता है, आखिरी में क्यों नहीं पूछा जाता, बीच में क्यों नहीं पूछा जाता? ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है कि शुरू में ही पूछना है, पर मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ कि ये पहला सवाल क्यों होता है। आप आए इंटरव्यू रूम में, आके बैठे और मैंने आपसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और आपने कुछ तो भी ब्लैबर किया और 30 सेकंड में आपका इंट्रोडक्शन हो गया, या आपने इतना कर दिया कि 2.5 मिनट तक आप बोले ही जा रहे हैं। ठीक है, ना शब्दकोश सही है, ना प्रोजेक्शन है, सही है। ना एक सेल्फ अवेयरनेस है, ना आप ठीक से बता पा रहे हैं। होता क्या है, पैनल ये एनालिसिस करता है कि यार मैं इस बच्चे का इंटरव्यू तो तब लूँ जब इसे खुद के बारे में ठीक से पता हो। सो इट्स अ मेजर पुट ऑफ फॉर एनी पैनलिस्ट जब बच्चा मिजरेबली फेल होता है अपना इंट्रोडक्शन देने में, विच 8 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स फेल बैडली बिकॉज दे प्रिपेयर एवरीथिंग। यही एक चीज़ है जो आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी का इंट्रोडक्शन अलग होगा। करेक्ट। तो आप उसे कितना इंप्रेसिव तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, किस तरह से अपनी कहानी बताते हैं, किस तरह से बता पाते हैं कि मैं अपने बारे में कितना कुछ जानता हूँ। तो जब सेल्फ अवेयरनेस जीरो होती है तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन जो है वो सबसे खतरनाक होता है। और जब बच्चा इसमें फंबल हो जाता है तो पैनल का बड़ा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि आगे का सफ़र क्या ही तय करेंगे, एकेडमिक के बारे में, सोशल अवेयरनेस के बारे में, ये सब पूछने में इंटरेस्ट थोड़ा पैनलिस्ट का कम हो जाता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका इंट्रोडक्शन ख़राब है तो आपका इंटरव्यू ख़राब हो, लेकिन ये बहुत बड़ा कैच है कि अगर इंट्रोडक्शन ख़राब है तो द प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई दैट यू विल फंबल बैडली इन द इंटरव्यू। तो इसलिए सवाल पहले पूछा जाता है टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ अवेयरनेस। Okay. But sir, according to you, because you have been in the industry for quite some time, when does the interview actually starts? Is it starts as soon as you walk in the room or? ओके, देखिए बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स का कि जब इंटरव्यू जो है वो जब हम पैनल के सामने जाके बैठेंगे तब वो पहला सवाल पूछेंगे तब इंटरव्यू शुरू होगा। ऐसा नहीं होता। आपके दिमाग में इंटरव्यू बहुत पहले ही शुरू हो चुका होता है। अब मैं इसको मोटे मोटे तौर पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए मैं हॉस्टल में रहता हूँ और आज मेरा इंटरव्यू है, तो फ्रॉम द टाइम आई स्टार्ट फ्रॉम माई रूम और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर मैं वेटिंग एरिया में होता हूँ, तो जिस वक्त आप वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं वहाँ से इंटरव्यू शुरू होता है साइकोलॉजिकली। क्यों? क्योंकि ये पहली बार होगा कि आप अपने बैचमेट्स को देखोगे उनके फोल्डर के साथ, और आपका कंपैरेटिव माइंड तुरंत ट्रिगर करेगा कि यार मेरे पास तो ये सर्टिफिकेट नहीं है, वो सर्टिफिकेट नहीं है, इसने तो ये सर्टिफिकेशन किया है, वो सर्टिफिकेशन किया है। तो कहीं ना कहीं या वो बहुत गुड लुकिंग दिख रहा है या उसके कपड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपको सब दिखेगा क्योंकि नाउ इट इज़ अ कॉम्पिटिशन। इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द चाइल्ड, क्योंकि अब लास्ट मिनट तो आप सर्टिफिकेट ला नहीं सकते, लास्ट मिनट तो आप कोई ज्ञानवर्धन कर नहीं सकते, तो प्रेशर बिल्टअप तब होता है। लेकिन उसको डील करने का एक बहुत सिंपल तरीका है जो मैं अक्सर अपने सेशन में बोलता हूँ कि
जिस वक्त आप इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हो उस वक्त एक बार आप आंख बंद करिए 15 सेकंड के लिए और आप पीछे जाइए अपनी जर्नी में, तो आपको ये महसूस होगा कि जिस जगह पर आप बैठे हो इसकी कल्पना भी आपने नहीं नहीं की की थी। जितने फेलियर्स देखने के बाद इस पॉइंट पर बैठे हो, मैं मेजोरिटी बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पर इन जनरल बच्चे को उस 15 सेकंड में ये महसूस करना चाहिए कि हु ऑल प्लेड अ क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग द ह्यूमन ही और शी इज टुडे. So always go back and reflect yourself from where my journey started. I never thought of this situation where I'll be sitting for an interview for a big company. तो उससे क्या होता है, आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड पैदा होता है और आपको जो एक मीडियोकर कंपटीशन, अनवांटेड कंपटीशन दिख रहा होता है वो शांत हो जाता है. क्योंकि ये देखने के लिए नहीं आया था मैं. मेरी जर्नी बहुत अलग रही है, मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, मुझ पर बहुत सवाल उठाए गए हैं. तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट की जर्नी आसान नहीं होती. तो उस मोमेंट पे ओनली रिफ्लेक्ट योर जर्नी फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड. फिर उसके बाद कॉल होता है कि यू आर नेक्स्ट. द सेकेंड स्टेज ऑफ द इंटरव्यू इज व्हेन यू स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ द इंटरव्यू. जब आप दरवाजे पे खड़े होते हैं ना इंटरव्यू रूम के, तो ये आपको फिर से वो मौका, वो सिचुएशन याद दिलाता है कि ये मैंने सिचुएशन पहले भी फेस करी है. और ये सिचुएशन होती है क्लास 10th के बाद आने वाली सिचुएशन, जिसको हम वाइवा बोलते हैं. करेक्ट. वाइवा में लेबोरेटरी के बाहर आप खड़े होते हैं, यू आर अबाउट टू नॉक द डोर to enter the lab. And same thing happens in 11th, 12th and graduation if you're into a technical setup, जिसको हम वाइवा बोलते हैं. उसमें क्या होता है, वाइवा के प्रोसेस में इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जो आपको रियलाइज ही नहीं होता और आप उसको एज इट इज़ रिपीट करते हो व्हेन यू गो फॉर जॉब इंटरव्यू. क्या होती हैं वाइवा में, कभी आप ध्यान दीजिए, जब आप नॉक करते हो, दरवाज़ा खोलते हैं, तो आई कांटेक्ट तो होता ही नहीं भाई. हाँ. गुलामी में सर झुक जाता है, क्योंकि आता ही कुछ नहीं है. अभी फ्लूइड मैकेनिक्स का वाइवा हो रहा है अगर, और मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं कि मैं फैकल्टी को देख आंख मिलाऊं कि भाई मेरा कैसे भी पास हो जाओ, निकल जाए. तो सर झुक जाता है. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून तो होता ही नहीं, वो तो आप मरमर करते हो, विस्पर हो जाता है. सो यू एंटर द रूम एंड यू क्लोज द डोर. जब आप चल के जा रहे होते हैं फैकल्टी की तरफ, तो आई कॉन्टैक्ट जीरो है, आप जाके खड़े हो जाते हैं. फिर वो बोलता है बैठो, फिर आप बैठ जाते हैं. और उसके बाद जो होता है आपको भी पता है, द नेक्स्ट लेवल ऑफ सफरिंग स्टार्ट्स, क्योंकि फैकल्टी को भी पता है कितना आता है. हुआ क्या, हुआ ये कि आपने इसको कभी करेक्ट नहीं किया और किसी ने आपके अंदर ये करेक्शन नहीं किया, तो आपके जहन में बात बैठ गई. अब आप जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपको किसी ने कुछ नहीं बताया, दरवाज़ा नॉक करेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, आप भूल गए फैकल्टी और पैनल में फ़र्क होता है. फैकल्टी आपको रोज़ देखता है, आप उसे विश करें ना करें और जानता है कैसे हो तुम. पैनल तो लेकिन आपको पहली बार देख रहा है, उसमें भी आपने आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं किया और आपने विस्पर किया, मैं है कम इन सर, जितना धीमे आप बोल सकते हैं, वो भी नॉट करके हो जाता है. हाँ. करेक्ट. फिर आप अंदर जाते हैं, आई कांटेक्ट तो कभी किया नहीं, तो चल के जाके खड़े हो गए. फिर उन्होंने बोला टेक अ सीट, यू टेक अ सीट. अब ये सब क्या हुआ, इट डिस्ट्रॉयड योर इम्प्रेशन इन द फर्स्ट 30 seconds only. This is what damage Viva does in a student's life. And nobody correct it. तो करेक्शन क्या है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज योर मोमेंट व्हेन यू नॉक द डोर एंड यू ओपन द डोर. दिस इज द फर्स्ट टाइम पैनल इज लुकिंग एट यू. अब जिंदगी में कोई अगर आपको पहली बार देख रहा है, तो आपका कोशिश होगा कि मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से, करेक्ट, ग्रेशियसली उस इंसान से मिलूं. तो आपकी आवाज़ में एक वजन होना चाहिए, जैसे आप विश करें, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैन आई कम इन. This is how you should greet the panel, because this is the first time they are seeing you completely visible. So you leave an impression. Correct. Why I am emphasizing so much on this? क्योंकि इसके पहले कौन सा बच्चा कितनी मनहूसियत फैला के गया, कितनी नेगेटिविटी फैला के गया, कितनी पॉजिटिविटी फैला के गया, आपको नहीं पता. पैनल किस मूड में बैठा है आपको नहीं पता. तो आपका काम है उस चेन को ब्रेक करना, उस मूड को ब्रेक करना. एंड दैट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ एनर्जी. Okay. So the young people out there has to enter the interview room with lot of energy. रणवीर सिंह मत बन जाइए, पर एंटर विद द एनर्जी, गुड एनर्जी, गुड ऑरा. सो यू एंटर द रूम एंड विश द पैनलिस्ट, देन यू क्लोज द डोर. व्हेन यू वॉक टुवर्ड्स द पैनलिस्ट, योर बॉडी शुड बी स्ट्रेट, चिन अप, चेस्ट अप, एंड यू वॉकिंग टुवर्ड्स देम. मेक देम फील दैट अ यंग डायनेमिक person is walking towards them for an interview. Correct. No lethargic walk. Straight you move towards them and you stand next to the chair. Now when the panel asks you, take a seat, then only sit. Don't just go and take a seat. Correct. There is a possibility that panel may not ask you to take a seat and they start the questions. This is what you call building the pressure. Oh.
दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग द प्रेशर। आपको लगेगा मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे बैठने के लिए क्यों नहीं बोला। अब आपकी साइकोलॉजी कहाँ चली गई है, मुझे बैठने के लिए क्यों नहीं बोला। But does this happen? It happens. If the panel wants to build a pressure on you, they may not ask you to take a seat. And they start asking questions. Okay, Anurag, how are you? How was your day? Okay. What you're doing at this moment? Okay. What all things you have seen while coming? These all are irrelevant questions. Only to build pressure on a child. Correct? They are not irrelevant. They are just checking you. Are you getting nervous? Losing confidence? So a lot of things. So a lot of time panel will ask you to take a seat. So you take a seat. It is always advisable that never put your folder on the table. Yeah. Table is their area. So you always put your folder on your lap. Then they will ask you, can I look at your folder? Nowadays they don't look at it because they all have details of yours with them. Correct. But if they ask you, then you hand over. Hand over with both hands, not just one hand. hand. Etiquettes. So first stage when you are waiting, second stage at the door, and third stage when you're sitting in front of them. Now they're going to ask a golden question to you. Tell us something about yourself. And now that's where the final stage of the interview come into picture. So this is how the interview starts. It starts way back before even you are present in front of the panelist. Say if a student went into an interview, the student sat on the chair and started off with, tell me something about yourself as an answer. According to you, what should be the flow and how it should direct? Oh, that's an interesting question क्योंकि यही चीज़ आपको डिज़ाइन करनी पड़ती है। देखिए, बहुत ज़रूरी है समझना, कोई इंटरव्यू लेता नहीं है, आप इंटरव्यू देते हैं। हाँ, हम इंटरव्यू देते हैं। आपका वो इंटरव्यू ले नहीं रहे हैं। वो आप देखिए, पहली चीज़ तो ये, बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, इंटरव्यू इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर लॉट ऑफ ड्रामेटिक्स इज इन्वॉल्व्ड। आप मेरे को पहले से नहीं जानते एज अ पैनल, मुझे आप नहीं जानते, ना आप मेरा नेचर जानते, ना आप टेम्परामेंट जानते, तो मैं जैसा भी आपके सामने एक्ट करूँगा वही सही होगा। करेक्ट। तो मैं आपके साथ कैसा भी बिहेव करूँगा टू बिल्ड प्रेशर ऑन यू। पर बच्चा उसको बहुत दिल से लगा लेता है। कई बार आपको पैनल में ऐसे लोग मिलेंगे जो एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, आपको लगातार देखते रहेंगे और आप कॉन्शियस होते रहेंगे। कई बार आपका इंटरव्यू 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, आपको लगेगा कुछ पूछा ही नहीं, और बगल वाले का इंटरव्यू 20 मिनट चला, तो मेरा क्या होगा। ये ऑल साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स होते हैं। इसके अंदर बच्चे को ये एनालिसिस, तो बच्चे का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, बच्चा पैनलिस्ट को जज कर रहा है और पैनलिस्ट बच्चे को एनालाइज कर रहा है। दोनों में फ़र्क है। पैनल ने मुझे कैसे देखा, कितना रूड बोला, गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया, नीचे ही देखता रहा, मुझे डिसरिस्पेक्ट ही करता रहा, ये सब बोलेगा। पर पैनल क्या कर रहा है, वो एनालिसिस कर रहा है कि साइकोलॉजिकली कितना प्रेशर बेयर कर पा रहा है। साइलेंस इज मोर किलर देन द वर्ड इन द इंटरव्यू रूम। अगर इंटरव्यू रूम में सिर्फ एसी की आवाज़ आ रही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन किसी बच्चे के लिए नहीं होती है। पर वहीं आपको होल्ड करना है कि आपने कोई क्राइम तो किया नहीं है, तो आप ईजी रहो ना, रिलैक्स रहिए। खैर, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो नेवर एवर जज दी पैनलिस्ट, नेवर जज देयर बॉडी लैंग्वेज, टोन, टेम्परामेंट, हाउ दे लुकिंग एट यू। इट्स नॉट योर बिजनेस। यू फोकस ऑन योर आंसर्स, स्टे काम। सो नाउ द क्वेश्चन एज यू आस्क्ड मी कि व्हाट ऑल थिंग कम्स टुगेदर इन डिजाइन द इंट्रोडक्शन। देखिए, मैं बहुत सिस्टमैटिकली बताता हूँ आपको। पहली बात, वेन एवर यू स्टार्ट योर इंटरव्यू, नेवर एवर से माई सेल्फ, यू ऑलवेज स्टार्ट विद माई नेम इज। Always start with your name, that my name is Anurag Sharma. It should be very clear and audible. कभी भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आपका मुंह बराबर खुलना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोजेक्शन क्लियर। सो फर्स्ट यू स्टार्ट विद योर नेम, माय नेम इज अनुराग शर्मा। आप जो भी बने हैं लाइफ में, उसमें आपके शहर का बहुत बड़ा रोल है। जिस शहर से आप आते हैं ना, उस शहर की तहजीब, तमीज़, उसकी तासीर, उसका बोलचाल का ढंग, उसका लहजा, ये सब लेके आते हैं। टेम्परामेंट, एटीट्यूड आप कैरी करते हैं। तो अपने शहर को कैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। ये बताता है कि आप अपने शहर के बारे में कितना जानते हैं। उसमें कई बच्चा बोल देगा, सर माय फादर वॉज इनटू अ ट्रैवलिंग और डिफेंस, और मैं तो जगह बदलता रहा। फिर भी उसका जवाब यही है कि आप कितना जानते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ दैट माय नेम इज़ अनुराग शर्मा, आई से आई कम फ्रॉम सिटी ऑफ नवाब्स, आई कम फ्रॉम द सिटी ऑफ तहजीब, आई कम फ्रॉम द सिटी विच वेलकम्स यू विद अ स्माइल। मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में। आई कम फ्रॉम द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। दिस इज़ अ फंडामेंटल थिंग आई एम सेइंग। तो अगर आप किसी भी शहर से आते हैं, उस शहर के बारे में आपको क्या पता है, व्हाट डिफरेंशिएट्स, देन दिस इज़ हाउ यू इंट्रोड्यूस योर सिटी। और साइकोलॉजी ये बोलती है कि जब आप किसी शहर का नाम लेते हैं, उससे एक इमेज बनती है। जब आप पटना बोलेंगे तो एक इमेज बनेगी, आप लखनऊ बोलेंगे एक इमेज बनेगी, आप बॉम्बे बोलेंगे एक इमेज बनेगी।
गोवा बोलेंगे कि इमेज बनेंगे, और हो सकता है उसमें से कोई पैनल लखनऊ से ही हो, आपको नहीं पता। तो मैंने बहुत तहजीब के साथ अपने शहर के बारे में आपको बताया। तो ये होता है माई कैरेक्टर, माई टेम्परामेंट, माई एटीट्यूड, माई लहजा, विच इज़ डन बाय द सिटी, डिजाइंड बाय द सिटी। फिर आता है आपका परिवार। जब आप परिवार के बारे में बताते हैं तो उसको ऐसे नहीं बताया जाता कि कितने लोग हैं, भैया क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, नो नो नो। प्लीज़ अंडरस्टैंड, फैमिली का मतलब होता है वैल्यू सिस्टम। तो आप कैसे बताएंगे? सो इफ़ आई हैव टू टेल यू, आई विल से आई एम फॉर्चुनेट दैट आई कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ टीचर्स where the education and discipline goes hand in hand since my childhood, which played a pivotal role in designing me as a sincere student. So I have talked about my parents that they are teachers, and at the same time I told them my value system, which is discipline and academics, Okay. which developed me as a sincere student. तो ये मैंने बहुत क्लियरली कम्युनिकेट किया। अब आप बिजनेस क्लास से आते हैं, गवर्नमेंट जॉब से आते हैं, आपके पेरेंट किसी भी क्लास से हैं, हर क्लास में वैल्यू सिस्टम होता है। तो जब अपने फैमिली के बारे में आप बता रहे हैं तो उसको वैल्यू सिस्टम के पर्सपेक्टिव से बताइए, ना कि जस्ट कितने मेंबर हैं, कौन क्या करता है। रिश्ता लेके थोड़ना है, Correct. दामाद या बहू थोड़ा ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यू है, तो आप उसको वैसे बताएंगे। तो वैल्यू सिस्टम इज द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच यू टॉक अबाउट योर फैमिली। Okay. Then you talk about your school journey. That my school played a very crucial role in designing me as a student. I academically excelled in my career. अब आप उसमें ये मत बताइए कि 10th में 96 थे, 12th में 92 थे, उनके बाद रिज्यूमे वो देख चुके हैं, तभी आप शॉर्टलिस्ट हुए हो। तो उसको ओवर द टॉप मत बेचिए। आपने अगर बोल दिया ना कंसिस्टेंटली हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो वो हो गया। समझ गए। Then I represented my school at a state level volleyball competition. I became the sports captain and the head boy of my school. This is how you're talking about it. तो आप बता रहे हो आपके क्या क्या achievements रहे। Before closing this part, you always say what this sport taught you. So जब मैं बोलूँगा that I represented my school in a volleyball competition at a state level, where this particular sport taught me the importance of teamwork, coordination, and leadership, which helped me to understand the value of these things. Then I moved to my graduation. So in graduation, it helped me to explore my other side of the personality, which is beyond academics. During my college life, I organized a lot of events and fests in the campus. I was consistently on stage and presenting myself in different forms, in different categories, which has boosted my confidence and developed my interpersonal skills. Okay. I became a more outspoken personality during my college life. Before that, I was an academic guy, but in college, I became more an outgoing personality in the college. So I'm very thankful to my college for giving me such kind of platform. So this is how you'll talk about your college. Okay. Now, it is important to understand that if you are sitting for an interview after your graduation or after your MBA, there is a slight difference. If it is after graduation, it is very, very important to now talk about your internship and talk about your subject. There is a catch over here. It is important to tell them very clearly which are your favorite two subjects. Okay. प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे के साथ कि इंटरव्यू की तैयारी के नाम पे वो सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने की कोशिश करता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो कैटेगरिकली क्या बोलना है, जब ये इंटरपर्सनल स्किल्स आपने बोल दिया, दैट इन माई 4 year ऑफ ग्रेजुएशन, इन माई 4 year ऑफ इंजीनियरिंग, आई रियली enjoyed the two subject the most, thermodynamics and fluid mechanics, and I did my internship in this department, which taught me these things, and these are things which I learned. So you talked about your internship, you talk about your Subject. favorite two subjects, and if you have done any kind of a certification or given a presentation, you talk about it. What difference does it make if we point out subjects? 12 सब्जेक्ट हैं, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो एक एथिकल पैनलिस्ट वो होता है जो ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि आपको क्या आता है, ना कि आपको ये जताने में कि आपको कुछ नहीं आता है। तो एक अच्छा पैनलिस्ट हमेशा वो जानना चाहेगा आपको जो आता है, हम उसी में से पूछेंगे। तो आपका काम है वो पैनल को बता देना इनडायरेक्टली। And now before closing, you always mention your hobbies that I really enjoy singing and guitar in my free time, and I also love reading. If you do these things honestly. So your complete introduction should not be of more than 60 seconds, which is 1 minute. Okay. So I'll summarize this. You start with your name, you start with the city you come from, then you talk about your family in terms of value system, then you talk about your school, what role the school has played in designing you, then you talk about your college, how your character and life transformed in college, then you talk about your internship, favorite subjects, and hobby towards the end. And that is how someone should close the introduction when the panel asks you, tell me about yourself. Okay. And does that one answer drives the complete interview? That's where the beauty of the interview lies.
इट इज़ यू, एज आई टोल्ड यू ना, आपका इंटरव्यू कोई ले नहीं रहा है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जब आपने अपने इंट्रोडक्शन को इस तरह से डिज़ाइन किया, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा शायद वो मुझसे पूछें कि अच्छा जी आप लखनऊ से हैं, ओके, अब लखनऊ पे थोड़ी देर बात हो सकती है। या वो आपसे पूछ सकते हैं अच्छा वॉलीबॉल, थोड़ी देर वॉलीबॉल पे बात हो सकती है। फिर आपने इंटर्नशिप पे बात करी, उस पर बात हो सकती है। या आपकी जो फेवरेट 2 सब्जेक्ट्स हैं उस पर बात हो सकती है। या आपकी हॉबी पे बात हो सकती है। इनमें से किसी भी चीज़ पर इंटरव्यू उसके आगे उठ सकता है। एक अच्छा पैनलिस्ट हमेशा इंट्रोडक्शन से ही आपके जवाब से ही सवाल बनाता है। ओके, हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वही सवाल बनाएगा आपके इंट्रोडक्शन से जो आपको सुन रहा है, हाँ, जो इंटरेस्ट ले रहा है। इंटरेस्ट ले रहा है। क्योंकि उसको पता है कि मैं जब आपको हायर करूंगा तो ट्रेनिंग दूंगा, वो सब प्रोसेस हो जाएगा। पर यहाँ पर ज़रूरी है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि उसको क्या आता है और कितना अच्छा आता है। So that's how the introduction is, and the introduction has a potential to drive the interview. What all areas are normally being touched during an interview? First area is self-awareness, Okay. which is zero. Student सब तैयार करता है, सब तैयार कर लेते हैं, मिलजुल के, बांट के, कॉपी करके सब हो जाता है। बस इकलौता यही सवाल है वो जो ठीक से तैयार नहीं करते हैं अपने बारे में। अपने बारे में। तो सेल्फ अवेयरनेस इज पहली थिंग। द सेकंड थिंग इज द एकेडमिक अवेयरनेस। Okay. जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं उनको कितना आता है, या जो कंपनी आई है वो जिस प्रोफाइल के लिए लेने आई है, टेक के लिए आई है या MBA के दौरान आपको प्लेसमेंट ऑफर कर रही है, उस पूरे प्रोसेस में वो आपकी एकेडमिक अवेयरनेस को समझना चाहते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट, फाइनेंस के लिए अगर आ रहे हैं MBA हैं तो उस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मार्केटिंग के लिए आ रही है तो उस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, टेक्निकल के लिए आ रहे हैं इंजीनियरिंग के बाद तो उस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। Okay. टू अंडरस्टैंड योर एकेडमिक अवेयरनेस दे विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस, फॉलोड बाय सोशल अवेयरनेस। सामाजिक तौर पे आप कितना जानते हैं, आपके समाज में आपके इर्द गिर्द क्या घटित हो रहा है, हाउ मच यू नो अबाउट योर सोसाइटी, दे विल आस्क यू। इट कैन बी एनीथिंग। It is very important for a student to understand if they ask you any political question, be very careful while answering. You are a student, you are not a karyakarta of any party. People get aggressive. So please don't get into that zone. If there is a political question, handle with care. Don't avoid it. Never say I'm not very politically oriented. How can you not be? You are a youth of this country, you are supposed to be politically oriented. You should know what is happening in your society, correct? सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट कि भाई हो सकता है कि आप बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हो और पैनल में कोई भी ना हो, और हो सकता है आप बीजेपी के सपोर्टर ना हो और पैनल हो, तो इट कैन क्रिएट अ सिचुएशन विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो फॉर अ स्टूडेंट इट शुड बी अ वेरी एजुकेटेड आंसर इफ देयर इज अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल डायनेमिक्स। Okay. So academic awareness, social awareness, and there is something called as situation handling. So lot of time in the interview panel give you a situation. A very famous question normally being asked in the interview. There is a boat and on the boat there is a mother and wife and you can save only one. Whom you will save? In the organization there is your father and there is your husband and you have to fire one. Whom you will fire as a woman and why? Situation based questions हैं. इसके लिए आप कुछ सीख नहीं सकते. It is about your rational thinking कितनी strong है. How rationally you think. तो फायरिंग किसकी करी और किसको बचाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे की रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? Okay. तो दे चेक योर सिचुएशन हैंडलिंग। सो दीज आर द 3 ब्रॉडर एरियाज जहाँ पर आपका, और मे बी 4, सेल्फ अवेयरनेस, एकेडमिक अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस एंड सिचुएशन हैंडलिंग। सर, टू योर ओन क्वेश्चन, अगर किसी स्टूडेंट से पूछा गया कि एक नाव है, बीवी को बचाना है या माँ को बचाना है, किसी एक को बचा सकते हो, जी। हाउ वुड यू हैंडल दैट? अनफॉर्चुनेटली एट दिस मोमेंट आई एम नॉट अ स्टूडेंट, सो व्हाई यू वांटेड टू आंसर दिस क्वेश्चन? I don't want to make this question as a global answer and everybody start thinking, okay, this is Understood. So but I know the answer and I know the logic also, but I refrain to answer. Okay, fair. So, does campus placement or off-campus placement, the process remains same, or is there any difference? Campus placement process are easier than the off campus, because in the campus placement it is easy. You don't need to worry about anything. Companies will come to the campus and you just sit for the interview, and if you crack it you will get the job. Outside campus is also not difficult. If you're a good student you will get the opportunity, but the process of the interview more or less remains same. More or less the format, questioning. Okay. The only thing what they do, they are 2 interviews. One is a general interview, or you call it as a tech interview, and the other one is a HR interview. Okay. Yeah, that's the only difference. Okay. And an interview after your graduation and interview after your PG, is there a huge difference?